Okay, so in this class we are going to start new chapter in zoology, that is locomotion and movement. So first of all, what is meant by locomotion? What is locomotion? Then what is movement? What is locomotion? Locomotion means change in location of the organism. If organism is moving from one place to another place, organism is changing its locality from one place to another place, that is locomotion. Change in location by the organism. If organism is changing its location, that is locomotion. Why they do locomotion? Question is why they do locomotion? For फूड सर्च के लिए, मेट सर्च के लिए, टू एस्केप फ्रॉम प्रीडेटर्स के लिए, प्रीडेटर से बचने के लिए, है ना, ये सारे लोकोमोशन है. चेंज इन लोकेशन बाय द ऑर्गेनिज्म. इफ ऑर्गेनिज्म इज चेंजिंग इट्स लोकेशन for food, for mate, for to escape from predators, this is all about locomotion. Then how organism do locomotion? Paramecium, say for example, paramecium, how they do locomote? Paramecium uses cilia. Paramecium के अतराफ ना बहुत सारे small hair like cilia होते हैं. All these cilia, they are helping for locomotion. कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया, मतलब सारे सीलिया, इतने सारे सीलिया एक साथ वाटर में स्विम करने में हेल्प कर रहे होंगे. कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया हेल्प इन लोकोमोशन. लोकोमोशन में हेल्प कर रहे होंगे. एंड इन एनगल्फिंग फूड into the gullet and cytopharynx. याद रखो, पैरामीशियम को बहुत सारे सीलिया हैं, and all these cilia coordinated movement. That means all these cilia all together all the cilia are helping for coordinated movement. That means teamwork. Single cilia are not working. All the cilia are working together. Coordinated movement of cilia help in locomotion. So how paramecium is changing its location, how it is moving from one place to other by cilia. So actually here cilia, two functions are given. One function is locomotion, another function is also helping for engulfing food. So with the help of cilia, they trap the food particle, and then food particle is forced to enter through an opening called gullet. Opening is called gullet. And gullet, below the gullet, what is present? Cytopharynx is present. Now clear the thing. Okay, no doubt. How cilia are working? Coordination. They are working in team. And what is the function? To trap the food particle and also helping in locomotion. This is about paramecium. ठीक है, चलिए आगे. Now apart from paramecium, if you take some other examples, hydra. What is hydra? How hydra is doing locomotion? Hydra क्या है? It is a freshwater coelenterate.
फ्रेश वाटर सिलेंट्रेट है, सिलेंट्रेट है, इन्वर्टिब्रेट है ये. सिलेंट्रेट मीन्स इट इज एन इन्वर्टिब्रेट विदाउट बैकबोन. फ्रेश वाटर सिलेंट्रेट है. माउथ इज सराउंडेड बाई टेंटाकल्स. Mouth is surrounded by tentacles. Tentacles help in trapping food. Help in trapping food. Food पकड़ने के लिए भी help करेगा tentacles. And also in looping type of movement. Looping type of movement. What type of movement? Looping type of movement. Say for example, if this is Hydra, it is having several tentacles like this. So these elongated hair like ये tentacles है. These tentacles are helping for two important functions. One is trapping food. Food को तो trap कर रही हैं ये. And also helping for looping type of movement. Question is what is looping type of movement? Looping type of movement मतलब क्या है? Say for example, this is one hydra. Hydra है. So during locomotion, what it do? It bend its body completely inward like this. It bend its body. पूरे body को bend कर देता है. Then again comes straight like this. फिर tentacles. Again bend its body. So like this looping type of movement. मतलब कभी भी लोकोमोशन करना है, मूवमेंट करना है तो क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल दे बेंड डाउनवर्ड, देन अगेन रेज अपवर्ड. बेंड डाउनवर्ड, रेज अपवर्ड. पहले बेंड करो फिर रेज करो ऊपर. सो दिस इज लूपिंग टाइप ऑफ मूवमेंट. क्या बोलते हैं? लूपिंग टाइप ऑफ मूवमेंट. ये हाइड्रा के बारे में था. क्लियर है? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ह्यूमन बॉडी लोकोमोशन. मेन टॉपिक इज हाउ लोकोमोशन इज occurring in human. What is locomotion and what is movement? First of all, you should have idea about that. Locomotion means change in place of the organism. If organism is changing its location, that is called locomotion. What is meant by movement? Change in position of body part. If body part position is changing, just standing at the same place, if you move your neck to the right side and to the left side, this is what movement. Standing at same place, if you move your hand, this is also movement. It is movement. It is not locomotion. क्या बोलेंगे इसको? मूवमेंट बोलेंगे. ठीक है? तो इसका मतलब है ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन. नेक मूवमेंट अलग है, लेग मूवमेंट है, हैंड मूवमेंट है, आईज मूवमेंट है, हार्ट मूवमेंट है. ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन. ओके, ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन. क्योंकि हम स्टैंडिंग एट द सेम प्लेस, you can move your body parts same place without changing the location of organism. That is movement. If organism completely moving from one place to another place, that is locomotion plus movement. Can you move? Can you do locomotion without movement? Can you do locomotion without using your muscles, without moving your legs? ऐसा तो नहीं कर सकते. So मतलब ये है all locomotions are movement, but all movements are not locomotion. But all movements are not locomotion.
आप जस्ट इतना बोलिए मुझे, आईज क्या करते हैं बोलिए, मूवमेंट करते हैं या लोकोमोशन करते हैं? आईज मूव, राइट एंगल है ना, राइट में राइट साइड जा रहा है आपका आई बॉल, लेफ्ट साइड जा रहा है, अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, दिस इज मूवमेंट. सो दैट्स व्हाई ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन. ठीक है, आईज मूवमेंट होता है, टंग का मूवमेंट होता है. व्हाट इज मूवमेंट? चेंज इन position of body part. If body part position is changing, that is called movement. Change in position of body part. So locomotion clear हो चुका है. What is the mean by locomotion? ये सारे clear हो गए. What is movement भी clear हो गया. ठीक है? Yes. अब आएंगे हम types of movement in human body. Types of movement in human body. देखिए, सबसे पहले हो रहा है सीलियरी मूवमेंट भी हो रहा है हमारे पास. सीलियरी मूवमेंट हो रहा है. कहां हो रहा है बोला तो एफटीबी में हो रहा है. कहां हो रहा है सीलियरी मूवमेंट? एफटीबी. फैलोपियन ट्यूब इज लाइंड बाय सीलिया. ट्रैकिया लाइंड बाय सीलिया. ब्रोंकियोल्स लाइंड बाय सीलिया. फैलोपियन ट्यूब, ट्रैकिया, ब्रोंकियोल्स लाइंड बाय सीलिया. ठीक है, लिख दीजिए एफटीबी. एफ फॉर फैलोपियन ट्यूब लिख दिए, लिख दीजिए. टी फॉर ट्रैकिया लिख दीजिए. बी फॉर ब्रोंकियोल. नेक्स्ट नेक्स्ट आएंगे अमोएबॉइड मूवमेंट. Amoeboid movement is also there in our body. Amoeboid movement occur in case of leukocytes and macrophages में भी होता है. So question, what is leukocytes? WBCs हैं ये. Leukocytes are the WBC and macrophages are the phagocytic cell. They engulf the pathogen. नेक्स्ट है मस्कुलर मूवमेंट. मस्कुलर मूवमेंट भी है. मस्कुलर मूवमेंट है. मस्कुलर मूवमेंट तो मेजर टाइप है ये, मेजर टाइप. मोस्ट ऑफ द मूवमेंट इन योर बॉडी पार्ट दैट इज बिकॉज ऑफ मसल्स. ओके, कभी कभी अमोएबॉइड मूवमेंट भी हो रहा है हमारे पास, सीलिया भी मूव कर रहे हैं कभी कभी, बट मेजर टाइप क्या है? मस्कुलर मूवमेंट. वो तो बहुत ज्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा मस्कुलर मूवमेंट. एंड वन मोर नोट याद रखेंगे, ह्यूमन के जो स्पर्म है, ह्यूमन स्पर्म हैज फ्लैजेलर मूवमेंट. ह्यूमन के स्पर्म में फ्लैजेलर मूवमेंट भी होता है. ह्यूमन स्पर्म इज आल्सो हैविंग फ्लैजेलर मूवमेंट. ओके, क्लियर है? So that means in overall I can say human is having amoeboid movement, ciliary movement, muscular movement, even flagellar movement is also there. Flagella भी है human में. in sperm tail में flagella होती है. So आप बोलेंगे सब समझ नहीं आ रहा. सीलिया मतलब सीलिया होंगे वहां पर, हेयर लाइक सीलिया होंगे. मसल तो ठीक है, समझ नहीं आता. मसल्स आर एवरीवेयर. हैंड्स में मसल्स हैं, लेग में मसल है, ये समझ नहीं आ रहा. अमोएबॉइड बात चल रही ह्यूमन बॉडी, और अमोएबा क्यों बोल रहे हैं? क्या हमारे बॉडी में अमोएबा रहते हैं? ऐसा नहीं है. अमोएबॉइड मूवमेंट का मतलब क्या होगा? अमोएबॉइड मूवमेंट मींस मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया. अमोएबॉइड मूवमेंट कैसे हुआ बोलो? विद द हेल्प ऑफ
यस बोलिए। pseudopodia, with the help of pseudopodia. And how the pseudopodia formation occurs? Pseudopodia formation by streaming of protoplasm. Streaming of प्रोटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग होने लगती है विद द हेल्प ऑफ, कैसे होती है? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स। विद द हेल्प ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स। याद रखो, सपोज दिस इज योर डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का कोई टाइप है, समझ लो न्यूट्रोफिल है ये। न्यूट्रोफिल भी करते हैं अमोएबॉइड मूवमेंट। ओके, स्ट्रक हो गया था, क्लियर कर लेंगे। देखिए, amoeboid movement occur in our WBC. Say for example, it is a WBC and it can produce some outgrowths like this. These are the pseudopodia. Pseudopodia बोलेंगे। कैसे बना pseudopodia? आउटग्रोथ हुआ ना, WBC है, WBC तो पहले ऐसे राउंड था, फिर उससे एक आउटग्रोथ कैसे बन गया ये? This is due to movement of protoplasm. It is due to movement of streaming, क्या बोलते हैं इसको? Streaming of protoplasm with the help of microfilaments. Proteinaceous filaments हैं ये। माइक्रोफिलामेंट नीडल लाइक प्रोटीन्स होते हैं, नीडल की तरह दिखने वाले प्रोटीन्स होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स बोलते हैं इनको। माइक्रोफिलामेंट्स आप हेल्प कर रहे हैं सीडोपोडिया फॉर्मेशन में। Microfilaments are helping for pseudopodia formation. Okay, so this is about amoeboid movement. How this amoeboid movement is occurring? With the help of pseudopodia. Pseudopodia से हो रहा है amoeboid movement। कैसे हो रहा है? By streaming of protoplasm हो रहा है with the help of microfilament. So definitely you will ask, what is microfilament? What are microfilament? बोल तो proteinaceous filamentous structure, प्रोटीन से बने हुए फिलामेंट्स हैं, विच आर गिविंग सपोर्ट स्केलेटन। अब देखो, सपोर्ट चाहिए ना, कोई ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, हेल्प कर रहा है लोकोमोशन में, मतलब इट नीड सम सपोर्ट, एडिशनल सपोर्ट, एंड दैट इज प्रोवाइडेड बाय माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स तो क्या है ये? अमोएबॉइड मूवमेंट हो गया। Next, and one more thing, very very careful, microfibrils versus microfilaments versus myofibrils, या नहीं तो इसको मायोफिलामेंट भी बोल सकते हैं, मायोफिलामेंट। मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं। माइक्रोफाइब्रिल्स जो होते हैं ना, माइक्रोफाइब्रिल सेलुलोज से बने हुए होते हैं। माइक्रोफाइब्रिल्स मेड ऑफ सेलुलोज इन गार्ड सेल्स। मान लीजिए गार्ड सेल्स ऑफ स्टोमेटा, ये तो बॉटनी वाले हो गया ना, बॉटनी में यूज होता है वर्ड माइक्रोफाइब्रिल्स बोल के, सेलुलोज से बना होता है, ये बॉटनी में यूज होता है। माइक्रोफिलामेंट कहां आएगा? जस्ट इतना याद रखना है, माइक्रोफिलामेंट इन सीडोपोडिया। माइक्रोफिलामेंट कहां आने वाला है? इन सीडोपोडिया। मायोफाइब्रिल कहां आने वाला है? मसल्स में आने वाला है, याद रखना। मायो, मायो क्या है? मसल्स को बोलते हैं, मायो मसल्स के लिए।
सो डेफिनेटली कंफ्यूज करेंगे। माइक्रो जब भी आंसर मायोफाइब्रिल है या मायोफिलामेंट है तो उसके साथ डेफिनेटली माइक्रोफिलामेंट भी देंगे। डब्ल्यूबीसी में कौन हेल्प कर रहा है? माइक्रो फिलामेंट हेल्प कर रहा है डब्ल्यूबीसी में, माइक्रोफिलामेंट। अब आप बोलेंगे सर माइक्रोफिलामेंट और मायोफाइब्रिल किससे बने हुए हैं? बोथ आर प्रोटीनेशियस, प्रोटीन से बने हुए हैं। ओके, now let's see about what are the types of muscles in human body. Muscles, as I told, in human some body parts are having ciliary movement, FTB में fallopian tube of the female reproductive system, trachea हमारा respiratory system, bronchiole इसमें सब में cilia है, hair like structure है which are helping for movement of particles. तो मसल्स कितने हैं ह्यूमन में? मसल्स कितने टाइप के मसल्स हैं पहले वो बताइए। 3 type of muscles are there: visceral muscles, skeletal muscle, और एक होता है कार्डियाक मसल। पहले लोकेशन की बात कर लेंगे, ठीक है। विसरल मसल, ठीक है। तो विसरल मसल को स्मूथ मसल भी बोल सकते हैं हम। स्मूथ मसल कहां मिलेंगे आपको? स्टमक में मिलेंगे, इंटेस्टाइन में मिलेंगे, इनर वॉल ऑफ ब्लड वेजल मिलेंगे, ब्लड वेजल भी लिख दीजिए, ब्लड वेजल्स में मिलेंगे। स्मूथ मसल्स हैं ये। स्केलेटल मसल जो है अटैच टू बोन्स है, अटैच टू बोन्स है। दे आर स्ट्रिएटेड वॉलंटरी है, स्ट्रिएटेड वॉलंटरी है। ये आपके बाइसेप्स में मिलेंगे, ट्राइसेप्स में मिलेंगे, लेग मसल्स में मिलेंगे, लेग मसल्स। स्मूथ मसल जो थे, विसरल मसल also called smooth muscle, they are present in stomach, intestine, blood vessel, iris, iris of eyes में भी मिलेगा, देखिए iris of eyes। और ये इनवॉलंटरी रहेंगे, टोटली इनवॉलंटरी, नॉट अंडर योर कंट्रोल। इनवॉलंटरी मींस दे आर नॉट अंडर योर कंट्रोल, इनवॉलंटरी बोलेंगे। कार्डियाक मसल कहां मिल रहे हैं आपको? स्ट्रिएटेड है ये, इनवॉलंटरी है, एक्सक्लूसिवली इन हार्ट, सिर्फ और सिर्फ हार्ट में है, कहीं और नहीं मिलेगा कार्डियाक मसल। आप बोलेंगे सर ये स्ट्रिएटेड वर्ड नहीं आ रहा ना, स्ट्रिएटेड, स्ट्रिएटेड क्या है? विसरल, पहले ये समझ लीजिए, विसरल, विसरल बोलते इंटरनल बॉडी मास। स्टमक है, इंटेस्टाइन है, दीज आर द इंटरनल ऑर्गन्स। तो इंटरनल ऑर्गन को हम बोलते हैं विसरल, विसेरल मसल बोलते हैं इंटरनल ऑर्गन्स। ओके, स्मूथ बोल रहे हैं हम इनको, क्यों बोल रहे हैं? डायग्राम देखे तो थोड़ा आइडिया लगेगा। स्टमक में मिलेगा, इंटेस्टाइन में मिलेगा, ब्लड वेसल में मिलेगा, आइरिस ऑफ आइस। और ये सब इनवॉलंटरी के नाम बता रहा हूं मैं। स्टमक आपके कंट्रोल में नहीं है, इंटेस्टाइन में आपके कंट्रोल में नहीं है, ब्लड वेसल, कैन यू मूव योर ब्लड वेसल? वॉलंटरीली नहीं कर सकते हम ऐसा। आइरिस, आइरिस क्या है? पिगमेंटेड पार्ट ऑफ द आई बॉल।
मिरर में आप जब अपने आईज देख रहे हैं तो उसके अंदर जो आई बॉल है डिफरेंट कलर्ड, मे बी ब्लैक कलर्ड, ब्राउन कलर्ड, तो वो आई बॉल जो है ना, पिगमेंटेड पार्ट ऑफ द आई बॉल इज कॉल्ड आइरिस। क्या बोलेंगे? आइरिस बोलेंगे। जैसे कि ये आइरिस है, ये पिगमेंटेड पार्ट ऑफ द आई बॉल, आइरिस। नेक्स्ट, स्टीरिएटेड के मीनिंग तो बताऊंगा मैं, कोई प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट अप, कार्डियक मसल का लोकेशन तो बस एक ही है, हार्ट। Now diagrammatically if you see, these are the smooth muscles, स्मूथ मसल कैसे दिख रहे हैं बोलिए? फ्यूजी फॉर्म दिख रहे हैं आपको? फ्यूजी फॉर्म दिख रहे हैं नहीं? व्हाट इज फ्यूजी फॉर्म? स्पिंडल शेप, स्पिंडल शेप, पॉइंटेड एट बोथ साइड, दोनों साइड पॉइंटेड है ना, उसको बोलते हैं फ्यूजी फॉर्म। फ्यूजी फॉर्म, यूनिन्यूक्लिएटेड, अनस्टीरिएटेड। अनस्टीरिएटेड मतलब अंदर कोई स्टीरिएशंस नहीं दिखेंगे, अंदर कोई लाइट डार्क लाइन ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहे। ठीक है, डार्क लाइन लाइट लाइन कुछ दिख रहा है क्या? स्ट्रिप्स नहीं है अंदर, पूरा साइटोप्लाज्म एकदम क्लीन है, अनस्टीरिएटेड बोल रहे हैं। और ये बिल्कुल इनवॉलेंट्री है, आपके कंट्रोल में नहीं है, ये स्मूथ मसल्स। नो, स्मूथ मसल के बाद नेक्स्ट कौन सा है? स्केलेटल मसल्स। इसके अंदर क्लियरली मुझे स्ट्रिएशंस दिख रहे हैं। कौन से मसल्स हैं? स्ट्रिएटेड स्केलेटल मसल्स। बताइए कैसे हैं? सिलिंड्रिकल हैं। शेप कैसा है? सिलिंड्रिकल शेप दिख रहा है मुझे, एक एक सेल सिलिंड्रिकल शेप है, और उसके अंदर लाइट डार्क बैंड्स हैं, लाइट डार्क बैंड्स हैं, लाइट डार्क बैंड्स हैं, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं स्टीरिएटेड। स्टीरिएटेड, अदरवाइज हम इसको स्टीरिएटेड नहीं बोलते। लाइट बैंड्स, डार्क बैंड, ऐसा कुछ भी, मतलब ये जो डार्क लाइन दिख रही है, डार्क बैंड, डार्क बैंड दिख रहे हैं आपको बीच बीच में, इन बिटवीन डार्क बैंड व्हाट इज प्रेजेंट? लाइट बैंड्स। मल्टी न्यूक्लिएटेड है, खास बात, स्टीरिएटेड मसल मल्टी न्यूक्लिएटेड है। मल्टी न्यूक्लिएटेड के लिए मैं वर्ड यूज करूंगा सिंक्शियम। और न्यूक्लियस कहाँ है बोल तो? पेरीफेरी में, न्यूक्लियस एट पेरीफेरी, न्यूक्लियस एट पेरीफेरी। इन स्केलेटल मसल, स्टीरिएटेड मसल, न्यूक्लियस कहाँ मिल रहे हैं आपको? कॉर्नर्स में मिल रहे हैं, पेरीफेरी में मिल रहे हैं, यहां पर। और ज्यादा न्यूक्लियस ड्रॉ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादा न्यूक्लियस यहां पर, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस स्मूथ मसल में। और स्केलेटल मसल क्या है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर, इजीली फैटिक, इजीली फैटिक है ना, जल्दी से टायर्ड हो जाते हैं ये मसल। स्केलेटल मसल बहुत जल्दी से टायर्ड हो जाते हैं, फैटिक हो जाते हैं, दे गेट टायर्ड। तो ये कौन से मसल थे? स्केलेटल मसल्स थे। नेक्स्ट, स्केलेटल मसल के बाद अभी कुछ पूछना है? नो डाउट।
डिफरेंसेस क्लियरली दिख रहे होंगे आपको। हाँ, नेक्स्ट अभी हम जा रहे हैं वन मोर मसल टाइप। व्हाट इज दैट? कार्डियक मसल में भी सिलिंड्रिकल शेप लेना चाहिए, लेकिन ऐसे ब्रांचेस आना चाहिए। ब्रांचेस भी आना चाहिए। अब फिर लाइट बैंड डार्क बैंड फिर बनाना चाहिए। ये कौन से मसल्स हैं? कार्डियक मसल्स हैं। कैसे हैं बोलिए? सिलिंड्रिकल तो हैं ही हैं, स्टीरिएटेड भी हैं, इनवॉलंटरी भी हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड यूनिन्यूक्लिएटेड। नेवर फैटिग, कभी भी फैटिग नहीं होंगे। दे नेवर गेट फैटिग। कार्डियक मसल कभी भी फैटिग नहीं होंगे, दे वर्क कंटिन्यूअसली। और इनकेस न्यूक्लियस भी हैं यहां पर, ये देख पा रहे हैं आप न्यूक्लियस। तो आप बोलेंगे एक एक सेल में दो दो दिख रहे हैं ना सर न्यूक्लियस। ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक बीच में एक सेल के बाद जो एक डिस्क है यहाँ पर, खास बात यहाँ पर एक डिस्क है। व्हाट इज दैट डिस्क नेम? इंटर कैलेटेड डिस्क है ये, कार्डियक मसल में ही होते हैं। इंटरकैलेटेड डिस्क हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ दिस इंटरकैलेटेड डिस्क? कम्युनिकेशन जंक्शंस हैं, कम्युनिकेशन जंक्शंस। That means information jump from one intercalated disk to another adjacent intercalated disk. Information jumping, यहां से एक इंटरकैलेटेड डिस्क से निकल के इंफॉर्मेशन एडजेसेंट और एक इंटरकैलेटेड डिस्क है ना, उसका इंफॉर्मेशन जंप होते रहेगा। दैट मीन्स ऑल द कार्डियक मसल वर्क एज ए यूनिट। मतलब आप इंफॉर्मेशन दिया गया आपको, आपको कुछ बताया, इंफॉर्मेशन दिए, तो इमीडिएटली आप इंफॉर्मेशन दूसरों को पास करें, फिर उन्होंने दूसरों को इंफॉर्मेशन पास करे, तो इंफॉर्मेशन ऐसे कैरी हो रहा है। दैट इज बिकॉज ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क कार्डियक मसल। तो एक एडवांटेज है, डिसएडवांटेज? एडवांटेज है क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत ही फास्ट ट्रैवल करेगा। करेक्ट। ब्रेन से एक इंस्ट्रक्शन आ गया इंटरकैलेटेड डिस्क को, तो सारे इंटरकैलेटेड डिस्क को इंफॉर्मेशन मिल जाएगा इमीडिएटली। लेकिन ब्रेन जो है, हर एक स्केलेटल मसल की बात करूं, ब्रेन से इंस्ट्रक्शन आना, एक एक सेल को एक एक इंफॉर्मेशन। आप टीचर जो है स्टूडेंट को एक इंफॉर्मेशन दिए, टुमारो यू आर हैविंग एग्जाम सपोज, सो इमीडिएटली वो स्टूडेंट जो है सबको इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर दिए। तो ये क्या है? इंटरकैलेटेड डिस्क है। अब ऐसा नहीं हुआ सपोज, तो क्या करना पड़ेगा टीचर को? हर स्टूडेंट के पास जाना, कल एग्जाम है, कल एग्जाम है, सबको बोलना पड़ेगा, जितने स्टूडेंट है सबको बोलना पड़ेगा। सेम ऐसे ही जो है हमारे स्केलेटल मसल्स हैं, स्केलेटल मसल, ब्रेन से इंस्ट्रक्शन आ गया सपोज ये सेल को, ये सेल कुछ भी नहीं कर रहा, अभी इंफॉर्मेशन नहीं आया इसको। हर सेल को इंफॉर्मेशन आना तभी काम करेंगे वो, ब्रेन से। स्केलेटल मसल डू नॉट वर्क as a unit. Each cell receive one stimulus. Each cell receive one stimulus. 5 स्टूडेंट हैं, इंफॉर्मेशन दे दिया, रिमेनिंग 4 स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन नहीं दिया, तो रिमेनिंग 4 स्टूडेंट दे आर नॉट प्रिपेयरिंग। क्यों? उनको काम बोले, हमारे काम बोले, थोड़े हर एक को अलग से बोलना पड़ेगा। स्केलेटल मसल्स में, स्मूथ मसल में, लेकिन कार्डियक मसल बहुत ही टीम वर्क है। कार्डियक मसल दे हैव वेरी फास्ट कंडक्शन ऑफ impulses because of intercalated disc। ठीक है।
चलिए, फैटिग होने वाले कौन से मसल थे? स्केलेटल मसल है। ब्रांच्ड वॉलंटरी, ब्रांच्ड बोलो, ब्रांच स्टीरिएटेड मसल। ब्रांच स्टीरिएटेड आते ही हमेशा बच्चे स्केलेटल लिख रहे हैं तो गलत है। स्टीरिएटेड दो में दिख रहे थे ना, स्टीरिएशन में जो कार्डियक मसल में भी स्टीरिएशन दिख रहे थे। स्टीरिएटेड मसल में फिर दो, स्टीरिएटेड मसल में स्केलेटल भी आता है, कार्डियक भी आता है। ब्रांच वाले आएंगे तो कार्डियक। ओके, सो अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द टॉपिक नेम? लोकोमोशन एंड मूवमेंट। दैट मीन्स we have to discuss only about those muscles which are responsible for our locomotion and movement, not about those muscles which are not helping for locomotion and movement. Stomach is not helping for locomotion and movement, intestine is not helping for locomotion and movement. फिर भी इंट्रोडक्शन में दिया टॉपिक में थोड़ा सा। लोकोमोशन इज बिकॉज ऑफ 3 systems: न्यूरल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम। लिखिए, लोकोमोशन इज बिकॉज ऑफ 3 systems. लोकोमोशन इज बिकॉज ऑफ 3 systems. 3 systems मिलकर लोकोमोशन करने वाले हैं। लोकोमोशन बिकॉज ऑफ 3 systems. नंबर 1, न्यूरल सिस्टम, न्यूरल। सेकेंड, स्केलेटल सिस्टम, आपके स्केलेटन बोन्स वगैरह भी हेल्प कर रहे हैं। और थर्ड वन, मस्कुलर सिस्टम। न्यूरल सिस्टम, skeletal system, muscular system. All the 3 systems are helping together for locomotion and movement. So we have to discuss about skeletal muscle now. skeletal muscle के बारे में अगर हम बात करें तो ये बोन है, मान लीजिए एक मसल है, बोन से कनेक्टेड रहना मसल, बोन से कनेक्टेड रहेगा तभी तो बोलूंगा मैं स्केलेटल मसल। एंड व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन मसल एंड बोन? मसल एंड बोन का कनेक्शन क्या होता है? दिस इज टेंडन। व्हाट इज टेंडन? मसल एंड बोन कनेक्शन। The entire muscle is wrapped by a cover. Entire muscle है ना, जैसे चॉकलेट आता है उसके ऊपर रैपर होता है, ऐसा मसल के ऊपर भी एक रैपर होता है। What is that wrapper around the muscle? क्या है? Epimysium. Cover around the whole muscle, epimysium. मैं कौन से मसल की बात कर रहा हूँ? स्मूथ मसल की बात कर रहा हूं क्या मैं? स्केलेटल मसल की बात करूंगा ना मैं, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉ भी मैं स्केलेटल मसल ही कर रहा हूं। बोन से कनेक्टेड है तो स्केलेटल मसल है, स्केलेटल मसल। एंड इनसाइड दिस मसल, व्हाट इज प्रेजेंट इनसाइड द मसल? इनसाइड द मसल you will find muscle bundles. This is one muscle bundle, second muscle bundle, कई मसल बंडल्स हैं अंदर। अंदर मसल के अंदर जो है बंडल्स दिख रहे हैं मुझको, मसल बंडल्स। ईच मसल बंडल इज कॉल्ड fascicle. fascicle। यहीं पे मैं आपको जो जो यहाँ पे लिखना है पॉइंट्स यहीं पे लिखिए। एपिमाइसियम कवर हो गया ना भाई। फैजिकल, फैजिकल के ऊपर भी एक कवर होता है। आप क्या बोलेंगे? कवर अराउंड द फैजिकल इज कॉल्ड पेरीमाइसियम।
Perimysium. Perimysium. Cover around the fascicle. Perimysium. Fascicle क्या है बोलो जरा? मसल बंडल. एक एक चीज क्लियरली आना चाहिए. देखिए टेंडन बोलते नहीं मालूम सपोज तो लिख लीजिए. व्हाट इज टेंडन? मसल एंड बोन कनेक्शन टेंडन. क्या मालूम कितना बेसिक पूछेगा एग्जाम में. मसल बोन कनेक्शन टेंडन है. ओके. Muscle is covered by, whole muscle is covered by epimysium. You can note also. Whole muscle covered by epimysium. Whole muscle covered by epimysium. Muscle bundles are called fascicle. Muscle bundles are called fascicles. Each fascicle covered by perimysium. Each fascicle covered by perimysium. Now inside the fascicle. Fascicle के अंदर क्या है? Now each fascicle contains several structures. They are called muscle fibers. क्या बोलने वाले हैं? Muscle fibers. Muscle fibers. Muscle fibers. Muscle fibers. Whole muscle covered by epimysium. Whole muscle covered by epimysium. Fascicle covered by perimysium. और अंदर क्या है? मसल फाइबर. ये मसल फाइबर क्या है? मसल सेल है. मसल सेल है. हर कंट्री की अलग अलग लैंग्वेज होती है. तो ऐसे ही जो मसल के अंदर आते ही सेल नहीं बोलना हम. मसल फाइबर बोलना. ब्रेन जाते ही न्यूरॉन बोलना. किडनी जाते ही नेफ्रॉन बोलना. तो अपने अपने ऑर्गन के हिसाब से लैंग्वेज चेंज. सेल को ही बोलना है. मसल सेल को मसल फाइबर बोलना है. देन ऑल द fascicles आर इंटरकनेक्टेड बाय. अब ये fascicle के बीच में जो कनेक्शन दिख रहे हैं आपको, fascicles are interconnected by fascia. What is fascia? Interconnections between, कहां पर है? Between fascicles. Interconnections between fascicles. Fascicles के बीच बीच में जो कनेक्शन आ रहा है वो fascia है. आप कंफ्यूज मत कर लो. बिल्कुल इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है. मसल बंडल्स आर कॉल्ड. एक ऑप्शन fascicle, एक ऑप्शन fascia. आराम से कंफ्यूज होते हैं बच्चे. हर क्वेश्चन हार्ड बनाना जरूरी नहीं होता, कंफ्यूजिंग बनाना होता है. एग्जाम लिखते होगा तो ऐसा महसूस होगा एवरीथिंग इजी. क्या सिल्ली पेपर बनाते, इतना इतना इजी बनाते हैं. बाद में देखे तो आंसर की के साथ सब चले गया रहता. समझे? fascicle fascia में कितने कंफ्यूज होते होंगे? आपको क्या लग रहा है? fascicle fascia में मुझे क्या लगता है मालूम? 80% कंफ्यूज होते हैं. अभी अभी पढ़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऑल टुगेदर 38 चैप्टर्स. 38 चैप्टर्स है ना. बायो क्या है? जब 38 चैप्टर की बात करेंगे और जब ऑल टुगेदर रिवाइज करना होगा, और जो भी हमारा रिवीजन स्टार्ट हो चुका है, रिवीजन हमेशा हम प्रीवियस टॉपिक ऐड कर रहे हैं. टेक दोस टॉपिक सीरियसली. कल भी बताया मैं आपको सिलेबस पूरा. कल ऑनलाइन में बताया ना मैं क्लास में.
मॉड्यूल 5 पूरी पढ़ेंगे आप ग्रैंड टेस्ट के लिए, और साथ ही साथ में बोला माइक्रोब की ये टॉपिक पढ़ना है, और पूरा भी नहीं दे रहे, देखो हम कितना आसान करके दे रहे हैं आपको टॉपिक, उतना कर लेना, उसमें डाउट नहीं रहना। बायो कंट्रोल एजेंट में, बायो फर्टिलाइजर में, इम्यूनिटी में, जो भी प्रीवियस टॉपिक ऐड हो रहे ना उसको सीरियसली पढ़िए, डोंट कंफ्यूज। अब बायो में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता, ठीक है। तो मसल बंडल को फेजिकल बोलेंगे, इंटरकनेक्शंस को फासिया बोलेंगे। और यहां आपका जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, मसल सेल का सेल मेम्ब्रेन क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन नहीं बोलते, मैं बोला ना सिटी चेंज, कंट्री चेंज, तो लैंग्वेज चेंज। इन मसल्स, मसल्स में साइटोप्लाज्म को क्या बोलने वाले पता है? हाँ, सार्कोप्लाज्म बोलना। और सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे पता है? सार्कोलेमा बोलेंगे, सार्कोलेमा। और यहाँ का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है एक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल के एक स्ट्रक्चर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलने वाले हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ का जो माइटोकॉन्ड्रिया है मसल में, उसके लिए भी अलग नाम। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलेंगे? सार्कोजोम्स, सार्कोजोम्स। एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, और एक आने वाला है एंडोमाइसियम। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच मसल्स? स्केलेटल मसल। मैं स्मूथ मसल के बारे में बोल रहा हूं क्या? These are the characters: epimysium, perimysium, endomysium. These are the characteristic of options में skeletal muscle, smooth muscle, cardiac muscle, fourth option all of this। कितने बच्चे कंफ्यूज होते होंगे? कंफ्यूज करने बैठे तो हर क्वेश्चन में कंफ्यूज कर सकते हैं। और जो बुक की लैंग्वेज है, जितना बोला गया उतना ही बोलना है। हम स्मूथ मसल क्यों ऐड करते हैं? मैं पढ़ा रहा हूँ स्केलेटल मसल में होता है एपीमाइसियम, बस स्मूथ मसल में बोला क्या, खत्म, उतना ही आंसर देना। स्केलेटल मसल, सी ऑल ऑफ दिस कंफ्यूजन के लिए दिए बस। each muscle covered by epimysium, each fascicle covered by perimysium, each muscle fiber covered by endomysium, each muscle covered by next, each fascicle covered by, each muscle fiber covered by, चलिए तीनों का आंसर। ईच मसल कवर्ड बाय एपीमाइसियम, ईच fascicle covered by perimysium, each muscle fiber covered by endomysium, एंडोमाइसियम। हाँ, और एक जो है आज के बॉटनी क्लास का डाउट है मुझे, वो भी बताना है। क्लास होने के बाद बच्चे बहुत सारे डाउट पूछे मेरे को, इसलिए बताना। मसल का पिगमेंट कौन सा है? मायोग्लोबिन है। मसल का पिगमेंट है मायोग्लोबिन।
मसल पिगमेंट कौन सा है? मायोग्लोबिन है, ऑक्सीजन रिजर्वायर भी बोलेंगे इसको, ओटो रिजर्वायर। मसल पिगमेंट मायोग्लोबिन ओटो रिजर्वायर है। और क्या बताना था मुझे? अंडर स्ट्रेनस एक्सरसाइज, अंडर स्ट्रेनस एक्सरसाइज, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कौन से मसल काम कर रहे हैं ज्यादा? स्केलेटल मसल ऑब्वियसली। अंडर स्ट्रेनस एक्सरसाइज लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन इन स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल में लैक्टिक एसिड बनने लगती है। और लार्जेस्ट मसल कौन सी है, स्मॉलेस्ट मसल कौन सी है? टोटल मसल कितने हैं? कोई बताएगा टोटल मसल इन ह्यूमन बॉडी? 6, अराउंड 638 है टोटल मसल्स। टोटल मसल्स इन ह्यूमन बॉडी 638 ले रहे हैं। और लार्जेस्ट मसल कौन सी है? ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस मतलब ये हिप मसल्स हैं, हिप मसल्स हैं। और स्मॉलेस्ट मसल कौन से हैं? स्टेपेडियस है, स्टेपेडियस अटैच टू स्टेपिस बोन, अटैच टू स्टेपिस बोन। अच्छा, स्मॉलेस्ट बोन भी वंच, स्मॉलेस्ट मसल भी वंच। स्टेपिस बोल के स्मॉलेस्ट बोन होती है, ईयर में होती है, उसके साथ अटैच होती है स्टेपेडियस। हाँ, तो मेरा ये बच्चे ना बहुत सारे बॉटनी की क्लास के बाद डाउट पूछे कि फ्लैजेला कहाँ से निकलता है, वेदर इट इज फ्रॉम सेल वॉल और इट इज फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिक्टेट भी वही किया हूं, लेकिन जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो दो अलग अलग बातें लिखे हुए। अगर आपके पास बुक है तो देख सकते हैं आप ये बात। और कौन सा सही लेना है वो भी बता देता हूं। देखिए, अगर हम पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर है 129 पे, अगर आप सेकेंड पैराग्राफ में देखेंगे, बैक्टीरियल सेल मे बी मोटाइल और नॉन मोटाइल। If motile, they have thin filamentous extension from their cell wall called flagella. Cell wall called flagella. यहाँ पे cell wall बताया। ओके, मतलब ये बैक्टीरिया है, ये क्या फर्स्ट ग्लाइकोकैलिक्स है, उसके बाद सेल वॉल है, उसके नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैं बोला प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकलता है फ्लैजेला। अब यहाँ पे एक्सटेंशन फ्रॉम सेल वॉल बोल रहा है ना। फिर आगे जाएंगे हम ये चैप्टर में, अगर पेज नंबर कौन सा है, ये पेज 137 में अगर हम पढ़ेंगे, अंडर द टॉपिक सीलिया फ्लैजेला, फर्स्ट लाइन, सीलिया एंड फ्लैजेला आर हेयर लाइक आउटग्रोथ्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। हेयर लाइक आउटग्रोथ्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन तो मतलब क्या है? इट इज डेवलपिंग फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन but passing through the cell wall, passing through the glycocalyx। डेवलप कहां से हो रहा है, ओरिजिनेट कहां से हो रहा है? सेल मेम्ब्रेन से। तो दोनों बातें लिखे हुए हैं, सेल वॉल एक तरफ, सेल एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल बोला है। हम दोनों स्टेटमेंट के लिए रेडी रहेंगे बस। फ्लैजेला आर एक्सटेंशंस ऑफ सेल वॉल इन बैक्टीरिया, या फ्लैजेला आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन।
पहले तो ऐसे कंट्रोवर्सी जो एनसीईआरटी में 2 बातें लिखे हुए रहते हैं, ऐसा तो पूछेंगे नहीं, अगर पूछेंगे तो दोनों को मार्क्स देना पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो ये एक था डिस्कशन। अभी लोकोमोशन एंड मूवमेंट का जो है, आज इंट्रोडक्शन क्लास हो गई है, फर्स्ट क्लास, और इसमें हम सारे चीजें देख लिए, एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम, सार्कोलेम्मा, सार्कोप्लाज्म, सार्कोजोम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मायोग्लोबिन, है ना। अभी हमको क्या करना है, ये जो मसल ड्रॉ कर रहे थे, पूरी मसल, वो मसल में से एक फेजिकल निकाल लेंगे, वो फेजिकल में से एक मसल फाइबर निकालेंगे, हेयर लाइक एक मसल फाइबर निकालेंगे, फिर उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में रख के देखेंगे अंडर द मैग्निफिकेशन ऑफ 2 लाख टाइम्स। कितनी मैग्निफिकेशन? 2 लाख टाइम, है ना। माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड भी होता है, एक दुनिया होती है अलग ही, वो जो आप अभी तक देखे नहीं। माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, पोलन ग्रेन कैसे दिखते होंगे, बैक्टीरिया कैसे दिखते होंगे रियल में, तो माइक्रो 2 लाख टाइम मैग्निफिकेशन करेंगे, सो दैट टाइम मसल्स के अंदर बहुत सारे चीजें दिखना शुरू होंगे, एक मसल फाइबर के अंदर। उसके अंदर जेड लाइन दिखेंगे आपको, एक्टिन फिलामेंट दिखेंगे, मायोसिन फिलामेंट दिखेंगे, एच जोन दिखेगा, ए बैंड दिखेगा, आई बैंड दिखेगा, सार्कोमियर दिखेंगे, फिर वो मसल फाइबर के अंदर एक। तो ये सारे चीजें हम कल स्टार्ट करेंगे। ओके, हाँ, एक क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डाइल्यूट यूरिन? Which of the following does not favor तो रेनिन वी आर टेकिंग आंसर, बिकॉज रेनिन डज नॉट फेवर large quantities of urine formation. रेनिन help in production of concentrated urine. रेनिन क्या करता है, जरा और एक बार सुनो। रेनिन क्या करता है, सुनो। रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में, फिर एंजियोटेंसिन 2 में, फिर एंजियोटेंसिन 2 जाके नॉक करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, फिर उसका दोस्त बाहर निकलता है अल्डोस्टेरॉन। अल्डोस्टेरॉन क्या करता है, वाटर को रीअब्सॉर्ब, मतलब यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड। नहीं समझे? जो पर्सन अल्कोहलिक है उसको यूरिन ज्यादा आता है, जो पर्सन कॉफी एडिक्टेड है उसको भी यूरिन ज्यादा आता है। कैफीन जो होती है ना, डायूरेटिक होती है कैफीन, कॉफी में होता है कैफीन। आप क्या सोचते हैं, यू आर गोइंग एंड ड्रिंकिंग कॉफी, एक्चुअली क्या है, वो कैफीन होता है अंदर, एक सब्सटेंस बिकॉज ऑफ विच यू आर एडिक्टेड टू दैट। फिर वो कैफीन लेने से क्या है, डायूरेटिक ज्यादा यूरिनेशन हो जाता है और वाटर लॉस। रेनिन यहां पे मैं आंसर लूंगा, डज नॉट फेवर इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ यूरिन। रेनिन does not help in large quantities of urine formation, it help in concentrated urine formation. PCT, if PCT is removed then urine become more diluted. देखो, जो 70 to 80% अब्जॉर्प्शन कहां हो रहा था, PCT में हो रहा था। PCT absorb 70 to 80%. If that PCT is removed, the urine become more diluted. अब देखो, जो वाटर अब्सॉर्ब होना था पीसीटी से वो अब्सॉर्ब नहीं हुआ, कहां जाएगा, वो यूरिन में चला जाएगा, तो डाइल्यूट हो जाएगा यूरिन। अगर हेनलेस लूप भी रिमूव करेंगे तो यूरिन, देखो हर पार्ट अगर रिमूव करते चले जाएंगे तो डाइल्यूट ही होगा। हर एक का काम है भाई वाटर को अब्सॉर्ब करना। हाँ, अगर पीसीटी अगर रिमूव करेंगे तो बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड हो जाएगा, बिकॉज इट responsible for 70 to 80% absorption.
One, renin is responsible for vasoconstriction